اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ چوتھا روزہ ہے اور ایک کل رات کو انتہائی خوفناک حملہ ہوا ہے سویلین کے اوپر۔ ہوا تو کینٹ کے اوپر تھا لیکن کینٹ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے تو انہوں نے سویلین کو ہی نشانہ بنا ڈالا ہے۔ اس پہ بات کروں گا، کتنے شہادتیں ہوئی ہیں، ان کی عمریں، ان کے نام مکمل تفصیل بتاؤں گا، اور کتنے حملہ آور تھے ان کی تفصیل بتاؤں گا، کہاں سے آئے وہ تفصیل بتاؤں گا۔ یہ بنو کینٹ پہ حملہ ہوا ہے، اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، اور مختصر سی ویڈیوز ہوگی۔ پوری ویڈیو دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے۔ اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ رمضان کے بابرکت مہینے میں عین افطاری کے وقت دیکھیں یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ نہیں ہے مسلمان، میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں نا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ خارجی ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ نبی پاک کے وقتوں سے لے کے آج تک ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو جہاں دیکھو ان کو جہنم واصل کر دو۔ یہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ جتنے حملہ آور تھے نا ان کی تعداد 14 ہے۔ انہوں نے اچھا یہ دیکھیں، وہاں کی گورنمنٹ کو اور گنڈا پور کو چاہیے کہ فوراً استعفیٰ دے دے، ریزائن کر کے گھروں میں بیٹھ جائے، اور وہاں کا جو وہ وزیر اطلاعات ہے نا بیرسٹر، پتہ نہیں کیا نام ہے، اس مردود کا نام بھی نہیں ذہن میں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ بھائی کیسے ناکام بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے ان میں، عورتیں، بچے، 6 بچے ہیں۔ 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں 6 بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں۔ تو ناکام کیسے ہوا پھر؟ وہ اتنا جدید اسلحہ لے کے اور بارود سے بھری ہوئی 2 گاڑیاں لے کے کینٹ تک پہنچے کیسے؟ اس کا کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جواب دے گا؟ کوئی یوتھڑ جواب دے گا؟ وہاں 12 سالوں سے حکومت کر رہے ہو اور یہ حال ہے تم لوگوں کا کہ سر عام لوگوں کو وہ آتے ہیں مار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو بعد میں کمانڈوز نے جا کے تو ان کو جہنم واصل کیا ہے، ورنہ وہ تو انہوں نے تو بڑی تباہی پھیلا دینی تھی۔ تو دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے حملہ کے پہلے 2 گاڑیاں لے کے آئے ہیں، وہ گاڑیاں انہوں نے ٹکرائی ہیں گیٹوں کے ساتھ، دونوں گیٹوں کے ساتھ، گیٹ ٹوٹے ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، گیٹ ٹوٹے ہیں، اور پھر وہ کینٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ جب کینٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو آرمی کے اندر تو داخل نہیں، یونٹوں کے اندر داخل نہیں ہو سکے، لیکن وہ جو دھماکوں کی شدت تھی نا، وہ اتنے شدید، بڑی گاڑیاں بھری ہوئی تھی بارود سے نا، وہ گاڑیوں کے پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے ہیں نا، یہ خود کش حملے تھے 2 گیٹوں پہ۔ یہ سڑک کے کنارے گھر ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کباڑیا آ جاتا ہے، کبھی کون آ جاتا ہے، کبھی کون آ جاتا ہے، تو اس لیے روکنی پڑی ویڈیوز۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ناکام ہو گیا۔ بھائی ناکام کیسے ہو گیا؟ وہ اتنی تعداد میں ہمارے شہری مارے گئے ہیں، عام سویلین مارے گئے ہیں، ان کا کون جواب دے ہے؟ ظاہر ہے وہاں پہ آپ لوگ 12 سالوں سے حکومت کر رہے ہو، اور اتنا جدید اسلحہ، اتنا ہیوی اسلحہ لے کے وہ کینٹ کے اندر داخل کیسے ہوئے؟
बारूद से भरी हुई गाड़ियां कैसे वहां तक पहुंची। और यह हमला ऐन उस वक्त हुआ है जब रोजा अफ्तार किया जा रहा था। कुल तादाद उनकी 14 थी हमलावरों की। और उन्होंने जो धमाके किए हैं ना, गाड़ियां उड़ाई हैं, उससे जो लोगों के घर गिरे हैं, छतें गिरी हैं, उनकी तादाद तो बेहिसाब है। तो अभी वहां पे 2 हॉस्पिटल हैं बड़े। एक है जनाब खलीफा गुल नवाज हॉस्पिटल, ये बड़ा हॉस्पिटल है। और एक है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, वो नज़दीक पड़ता है, वो बिल्कुल नज़दीक है। तो ये तकरीबन 42 अफराद को लाया गया है। वहाँ के जो एमडी हैं, एफजीआई के इंचार्ज मोहम्मद नामान साहब, उन्होंने बताया है कि कुल 42 अफराद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए। उनमें से 12 की शहादतें हो चुकी थी, 12 के शहीद हो चुके थे और 30 के करीब जख्मी हैं, उस वक्त तक लाए गए थे, आखिरी खबरें आने तक। तो और इनमें आर्मी के वो लोग शामिल नहीं है, ये सिविलियन है सारे। आर्मी के लोग जो जख्मी या शहीद हुए हैं ना, वो सीएमएच गए हैं, वो बाद में DGISPR के मुताबिक वो ऐलान कर दिया जाएगा। अभी मैं रोज़े की हालत में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही हक़ाइक़ को बताऊँगा, ना ही व्यूज़ मुझे चाहिए ऐसे ख़तरनाक खौफनाक हादसे के। ऐसे हादसात से अल्लाह महफूज रखे। छोटे छोटे 6 मासूम बच्चे भी शहीद हुए हैं, औरतें शहीद हुई हैं, जवान शहीद हुए हैं, बुज़ुर्ग शहीद हुए हैं। और ये डटाई के साथ कह रहे हैं कि हमने हमला नाकाम बना दिया। सीधा कहो कि हमारी हुकूमत नाकाम हो गई, या हम नाकाम हो गए, हमारा मरदूद लीडर नाकाम हो गया है जो जेल में पड़ा हुआ। अब कह रहा सिर्फ मुझे निकालो, पाकिस्तान जिधर जाए जाए। तो ये उनका उसी का इमरान का ही कारनामा है ना। इनको कौन लेके आया था वापस आके, KPK में किसने बसाया था। अब KPK के लोगों को फैसला करना होगा कि इन मरदूदों का साथ देना है या फौज का साथ देना है। आखिर फौज ही आई, वो कमांडो आए तो उन्होंने उनको जन्म वासल किया, वरना उन्होंने तो तबाही फैला देनी थी। कुछ फैला गए हैं, कुछ और फैलानी थी। तो अब जो मेरे पास लिस्ट आई है उसके मुताबिक शहीद होने वाले अफराद के नाम हैं और उनकी उम्रें हैं, ये सुन लें। ये जनाब हैं फरियाल, एक बच्चा है, उसकी उम्र है 8 साल। एक बच्चा है मूसा, जालिमों ने 1.5 साल की उम्र है इस मूसा की, 1.5 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। 1.5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, ये भी शहीद हुआ है, मूसा नाम है। और उसके बाद ये मीना नाम की बच्ची है, 3 साल उम्र है इसकी। अच्छा, उसके बाद नाजमीना है, ये 40 साल की खातून है, ये शहीद हुई है। सफ़ीउल्लाह है, ये भी बच्चा है मासूम, 8 साल उम्र है इसकी। और मोहम्मद इकबाल है, ये नौजवान है, 35 साल उम्र है इसकी। और शाइस्ता खान है, ये बुजुर्ग हैं, 60 साल उम्र है इनकी। हमजा अली है, ये भी बुजुर्ग है, इसकी उम्र 70 साल है। गुल मेहताब है, ये भी बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र 65 साल है। हिबा बच्ची है, इसकी उम्र 7 साल है। हिबा बच्ची की उम्र है 7 साल। और अलीमा भी बच्ची है, इसकी उम्र है 5 साल। और सनाउल्लाह है, इसकी उम्र है, ये नौजवान है, 30 साल। और महीबुल्ला है, और इसकी उम्र है 45 साल। और आगे फिर बच्चा है एक, सनाउल्लाह, 5 साल। अब देखें जनाब के
इन मासूम बच्चों ने, औरतों ने, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? रोजे की हालत में इफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे थे, इफ्तारी से पहले की हमला आवर हुए हैं। उनको पता था कि इस वक्त ये तैयारियों में लगे होते हैं और चेक पोस्टों पे ज्यादातर सख्ती नहीं होती है, तो ये आराम से गुजर के आगे। तो अब इन्होंने 2 गाड़ियां टकराई हैं गेटों के साथ, और एक बंदे ने बैक से जाके खुद को उड़ाया है गेट पे, जिसमें कि एक असास अदारा है वहां पे बन्नू में, उसका सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ है और उसका एक डायरेक्टर है वो जख्मी हुआ है उस अदारे का। तो ये बन्नू के में इसलिए उनके लिए आसान टारगेट है ना कि बन्नू शमाल में भी शमाल में भी वजीरिस्तान से मिलता है, जनूब में भी वजीरिस्तान के साथ मिलता है। और ये वही लोग हैं जो कि फितना ख्वारिज के नाम से हैं, जिनको इमरान नियाजी ने, इमरान खान ने ला के KPK में बसाया, और वही लोग आज हमारे मुल्क के ऊपर हमले कर रहे हैं, बच्चों को, औरतों को, जवानों को, बुजुर्गों को शहीद कर रहे हैं। और ये कैसे मुसलमान है जो ऐन रोजे की हालत में रोजेदारों को शहीद कर रहे हैं, मासूम बच्चों को? अब मूसा 1.5 साल का है, उसने क्या बिगाड़ा किसी को? उसको तो सही नाम भी माँ बाप का बोलना नहीं आता, उसको तो शऊर ही नहीं, समझ ही नहीं थी। और उसके बाद फिर 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे जो हैं, उनको क्या समझ है? उन बेचारों को तो इतना भी नहीं पता कि 6 बच्चे जो शहीद हुए हैं, बच्चियां और बच्चे, उनको बेचारों को तो पता भी नहीं है कि हम किस जुर्म में मारे जा रहे हैं। इसी तरह औरतें हैं, जो औरतों के बारे में और बच्चों के बारे में तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जंग में भी इनके ऊपर हमला नहीं करना है। तो ये कौन से मुसलमान है, कहां से आए हैं, किस तरह के मुसलमान हैं कि जो ये भी भूल गए हैं कि हमारे नबी का फरमान क्या है? ये तो मुसलमान है ही नहीं है, काफर हैं, काफरों से भी बदतर हैं ये फितना ख्वारिज के लोग। और किस तरीके से ये इन्होंने हमला किया है और आके दाखिल हुए, इनके पास जदीद असला था। 14 में से 8 तो फौज ने फड़का दिए, लेकिन 4 जो थे ना 6 वो छुप के वार कर रहे थे, उनके पास बड़ा जदीद असला था। उससे बचने के लिए फिर कमांडोज को बुलाया गया, फिर कमांडोज ने आके उनको जहन्नम वासल किया और इलाके को क्लियर किया है। अभी तक मुकम्मल इत्तलात नहीं है कि आर्मी के कितने जवान शहीद हुए हैं या कितने ज़ख्मी हुए हैं। और इधर जो सिविलियन में ज़ख्मी है उनकी तादाद 30 है, और जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद 12 है। 12 लोग शहीद हुए हैं और 30 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें से सीरियस ज़ख्मी भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में जो वो भी मौजूद है। तो अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, और शहीद होने वालों का अल्लाह अव्वल दर्जे में शहादत कबूल फरमाए, और इन दहशत गर्दों को, इनकी नस्लों को भी अल्लाह तबाह बर्बाद करे, जो पैसे लेके, डॉलर लेके मुसलमानों पे हमलावर होते हैं, कत्लेआम करते हैं, और जाए लोग वहाँ के KPK के जाए लोग इनकी हिमायत कर रहे होते हैं कि अच्छा किया। अब तुम लोगों सिविलियन पे आ गया ना, फौज पे जब हमला होते थे ना तुम लोग खुश होते थे, अब सिविलियन पे हो गए, अब खुश हो वो ना। अक्ल अगर तुम लोगों में होती, दिमाग होता, तो तुम 2 मरतबा कभी तो KPK की 3री मरतबा इस मरदूद पार्टी को तुम लोगों ने वोट दिए। तुम लोगों की तो तारीख थी कि जो 1 मरतबा वोट देते हो दोबारा उस पार्टी को वोट देते ही नहीं हो। क्या इनमें सुरखाब के पर लगे हुए थे? क्यों दिए थे वोट ऐसे लोगों को? क्यों मुंतखब करके असम्बलियों में भेजा था? जो तुम लोगों पे हमलावर हो रहे हैं उनको ला के बसाने वाली ये पार्टी है, उनको उनकी सहूलतकार ये पार्टी है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना जदीद असला, इतना हैवी असला लेके वो कैंट तक पहुंच ही नहीं सकते थे, बारूद से भरी हुई गाड़ियां, जब तक कि गवर्नमेंट के अंदर से, सूबाई गवर्नमेंट के अंदर से इनके सहूलतकार मौजूद थे, तब पहुंचे हैं।
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں استعمال کی ہوں، کیونکہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے۔ میں کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گا، روزے کی حالت میں ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بالکل 100% سچ بتا رہا ہوں کہ وہاں کے حالات کو اچھے نہیں ہیں۔ فوراً وہاں پہ گورنر راج لگانا چاہیے گورنمنٹ کو، اور فوج کے سپرد صوبہ کر دینا چاہیے تاکہ سویلین کی جان تو محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، آج دل بہت دکھی ہے، پریشان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، سید عاصم منیر کی حفاظت فرمائے، ان کی فیملی کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔